1 Samuel chapter number 17, you will see that after being anointed, God led David to the battlefield. और आप देखेंगे पहला शमूएल उसके 17 अध्याय में कि उसके मस्सा राजा अभिषेक होने के बाद उसको युद्ध भूमि पर ले जाया गया. Your anointing in your life will provoke, some attacks. कुछ जो आपका अभिषेक हो जाता है उसके बाद कुछ आक्रमण आपसे लग जाते हैं. This mic will not determine how anointed you are. ये माइक जो है वो नहीं बताएगा कि कितने मस्सा पाए हुए हो आप. How faithful and how consistent you are in the battlefield will determine the amount and the quality of anointing you carry. युद्ध भूमि पर आप कितने विश्वासी और कितने कर्तव्य निष्ठा से काम करते हो वो बताएगा कि आप अपने मस्से पर अग्रसर हो कि नहीं. Ho Rababa Shande will never determine how anointed you are. अन्य भाषा बोलने से आपका अभिषेक नहीं दिखता. Amen. Amen. But how faithful you are. लेकिन आप कितने विश्वास योग्य हैं, How strong you are आप कितने शक्तिशाली हैं, in the battlefield will determine उस युद्ध भूमि पर दिखाएगा that what quality of anointing you carry and what quantity of anointing you carry. कि कितना ज्यादा और किस क्या क्या गुण हैं आपके अभिषेक में. Amen. हमें After killing, Goliath, गोलियत को का खात्मा करने के बाद David became the part of the royal family in Israel. जो इस्राएल का राज घराना था उसका हिस्सा बन गया दाऊद. Oh wow. अब तो कितनी अच्छी बात हो गई. Now he is a popular man in that nation. अब उस राज्य में वो प्रसिद्ध हो गया लड़का. From nobody he became somebody. कुछ नहीं था पहले उसका वजूद, अब देखो कितना बड़ा आदमी बन गया. In that period, उस समय David killed 10,000 Philistines. 10,000 फलिस्तियों को मारा दाऊद ने. People started praising David. दाऊद की वाहवाही होने लगी. King Saul killed 1,000 and David killed 10,000. साउल राजा ने 1000 मारे लेकिन दाऊद राजा ने 10,000 को गिरा दिया. Hallelujah. Hallelujah. So far David is enjoying the goodness of God. अब अभी तक परमेश्वर की दी हुई आशीषों को और प्रसिद्धि को उसकी वाहवाही बटोर रहा है दाऊद. Everyone was praising David. हर एक व्यक्ति दाऊद राजा की स्तुति कर रहा है. But लेकिन there was a time एक समय आता है. in 1 Samuel chapter number 22. पहला शमूएल 22वें अध्याय में David departed from there and escaped to the cave of Adullam. And when his brothers and all his father's house heard it, they went down there to him. And everyone who was in distress, and everyone who was in debt, and everyone who was bitter in soul, gathered to him. So now, when he was enjoying the goodness of God in that land, जब उस राज्य में परमेश्वर की जो भले काम है उसका अनुभव कर रहा है दाऊद, when he was the hero of that era, जब उस युग का वो हीरो बन चुका था, all of a sudden अचानक ऐसा हुआ everything changed. सारी चीजें बदल गईं. The king who used to love David now hated. वो राजा जो दाऊद को प्रेम करता था अब उससे घृणा करने लगा. Now David started growing in that land. अब उस राज्य में उस भूमि पर दाऊद बढ़ने लगा. And because of that, और उसके कारण out of jealousy, ईर्ष्या के कारण King Saul started hating David. जो दाऊद राजा है उससे घृणा करने लगा शाऊल. Now King Saul was after David's life. अब दाऊद के पीछे पड़ गया शाऊल राजा. David was so much in trouble. अब इतना भयभीत हो गया डर के मारे दाऊद. He started gradually going out of God's will. अब परमेश्वर की इच्छा से दूर जाने लगा दाऊद राजा. When you read chapter number 21, chapter number 20, you will find that David started lying. David, started begging for bread. 20 और 21 अध्याय में आप पढ़ोगे तो देखोगे कि दाऊद झूठ बोलने लगा और रोटी के लिए झगड़ा करने लगा. Some of you might be thinking, this part I never knew.
about David. आप में से कुछ लोग बोलेंगे कि अरे ये तो मुझे पता ही नहीं था दाऊद के बारे में। But I tell you, God will take you through the fiery furnace to refine you for next level. मैं आपको बता दूं कि परमेश्वर आपको आग की भट्टी में से होकर निकालेगा, इसलिए ताकि आप सुनहरे हो जाओ और सारी अशुद्धियां आप में से हट जाएं। So that when you are in affliction, ताकि आप जब कमजोरी में पड़ो, you may know the decrees of God. परमेश्वर के सिद्धांतों को याद रखो। Do not be fooled with good times. अच्छी चीजों से गुमराह मत होना। I earn this much money because I deserve. इतना पैसा तो मुझे मिलता है क्योंकि मैं इसके योग्य हूँ। I have a good car because I deserve. अच्छी गाड़ी है मेरे पास, मैं तो इसकी योग्यता रखता हूँ। No, my dear, it's because of God's grace. नहीं, ऐसा नहीं है मेरे प्रियो, ये परमेश्वर के अनुग्रह के कारण हुआ है। Praises should go to the giver. जहाँ पर स्तुति है, स्तुति जानी चाहिए जो देता है उसकी ओर। Hallelujah. हालेलुया। And I tell you, blessings are not the evidence that you are a righteous person. आशीषों से आपकी धार्मिकता नहीं पता चलती। David being the hero of that era, उस युग का हीरो बनने के बाद दाऊद now he is running from place to place, hiding from King Saul. अब दर दर भटक रहा है दाऊद राजा से, साउल राजा से बचने के लिए। He is lying at one place. एक जगह झूठ बोल रहा है। He is requesting for meal, for bread at one place. और दूसरी जगह जाके खाने की चीज की मांग कर रहा है दूसरी जगह पे। He is pretending that he came to that place because King Saul sent him. और ऐसा वो दिखा रहा है लोगों को कि वो वहां इसलिए आया क्योंकि शाऊल राजा ने बोला उसको वहां जाने के लिए। With official work. ऐसे कि मैं तो ऑफिस के दफ्तर के काम से आया हूं, इसलिए यहां पर आया हूं। David also started pretending that he is still with King Saul. ऐसे ही दाऊद भी हरकत करने लगा दिखाने के लिए कि मैं तो साउल राजा के साथ अभी तक जुड़ा हुआ हूं। He was pretending that still he is in that same position. और वो गुमराह कर रहा था लोगों को अपने को ऑफिशियल काम करते हुए। But when nothing worked out, जब सारे हथकंडे उसके विफल हो गए, the only place where he can hide was the cave of Adullam. केवल एक जगह मिली उसको जहां पर वो रह सकता, वो थी वो गुफा अदुल्लाम की। Now what is Adullam? अदुल्लाम क्या है? What is the meaning of Adullam? अदुल्लाम की गुफा का क्या मतलब है? The Greek meaning of this word Adullam means a place of escape. अदुल्लाम शब्द का जो यूनानी अर्थ है उसका मतलब है कि एस्केप की जगह, जहां से आप भाग निकलो और एक जगह पनाह पालो। A place for refuge. एक पनाह पाने की जगह। When we are surrounded with battles, जब हम युद्ध से घिरे होते हैं, when we find ourselves in the midst of storm, जब तूफान में घिरे रहते हैं, you find that place to hide. आपको वो जगह मिल जाती है जहां पर आपको पनाह मिल जाए। Are you with me, church? क्या आप मेरे साथ हैं? So this cave of Adullam we experience in life. तो ये अदुल्लाम की जो गुफा है हम अपनी जिंदगी में भी महसूस करते हैं। After that great blessings and prosperity, और बड़ी कुशलता, बड़ी आशीषों के बाद, after that great fame in the city, और उस शहर में बहुत प्रसिद्धि पा all लेने के of a बाद, sudden you find yourself in no man's land. अचानक ऐसा होता है कि आप किसी भी भूमि पर नहीं पाए जाते। One time you were spiritually, so high. एक समय आत्मिक रूप से इतने ज्यादा ऊंचे हो आप, But at one time you were so low in your spirit. और एक समय आता है जब आत्मा में बहुत गिर जाते हो। This story is not just telling us the story of David, but we can relate our life, our journey with David's life. ना केवल ये दाऊद के जीवन की कहानी है, ये हमारे जीवन की भी कहानी है। Hallelujah. हालेलुया। His family left him. उसका परिवार ने छोड़ दिया उसे। Oh, king was after his life. राजा उसके पीछे पड़ चुका है। He had nothing to eat.
खाने के लिए कुछ नहीं है, he had no weapon. उसके पास कोई शस्त्र नहीं है, So he landed to the place where there was no man. और वो ऐसी जगह पहुंच गया जहां पर और कोई नहीं दिख रहा। Hallelujah. हालेलुया। But I tell you, during that time, David had no place to take refuge. But for us, we have a place to take refuge, and that is Jesus Christ. उस समय दाऊद को कोई जगह नहीं मिली अपने पनाह लेने के लिए, लेकिन हमारे पास वो जगह है यीशु में। Hallelujah. हालेलुया। David was in distress. बहुत तकलीफ में पड़ गया दाऊद। He had no idea to escape from King Saul. उसके पास कोई योजना नहीं है कि कैसे बचूं शाऊल राजा से। He was at the dead end point. अब उसके सामने मार्ग बंद हो जाता है, आगे जाने का कोई रास्ता नहीं। And now he decides to hide himself in that cave of Adullam. अब वो निर्णय लेता है कि इस अदुल्लाम की गुफा में पनाह पाए। From this cave, इस गुफा से that valley of Elah was visible. वो जो तराई थी ईला की वो दिखती थी। It was the same valley where David killed Goliath. वो वही तराई थी जहां पर दाऊद ने गोलियत को मार गिराया था। From this cave, you can easily see the city of Jerusalem. इस गुफा से आप देखोगे तो यरूशलेम की शहर भी दिख सकता है। From that place, he can recollect that how God helped him to kill Goliath. उस जगह से अगर वो देखेगा तो उसको पता चल जाएगा कि कैसे परमेश्वर ने उसकी मदद की गोलियत को गिराने में। From that place, he can see that palace, king's palace. वहां से वो राजा का जो महल है वो भी देख सकता है दाऊद। So now, just consider me, in the cave of Adullam. तो अब मान लो कि मैं अदुल्लाम की गुफा में हूं। At my right hand side, I can see the valley of Elah. और मैं देख सकता हूं कि मेरी दाहिने ओर ईला की तराई है। I can see the king's palace at my left hand. और मेरी बाईं ओर जो है वो राजा का महल दिख रहा है। Now, all together I can recollect my journey from the valley of Elah to the palace. और मैं देख पा रहा हूं कि मेरी यात्रा ईला तराई से वो राजमहल तक। But you are landed in no man's land. लेकिन अब आप ऐसी जगह पहुंच गए जहां पे और कोई मनुष्य नहीं है, गुफा में हो। Hallelujah. हालेलुया। I tell you, for David it was kind of dead end. दाऊद के लिए तो वो अंतिम जगह थी। In that cave, उस गुफा के अंदर he wrote Psalms 142. उसने लिखा भजन Read that. 142। It was that scripture that he wrote in the cave. उसने उस गुफा में बैठकर लिखा भजन संहिता 142। Yes. Yeah, read that. मैं यहोवा की दुहाई देता, मैं यहोवा से गिड़गिड़ाता हूँ, मैं अपने शोक की बातें उससे खोल कर कहता, मैं अपना संकट उसके आगे प्रकट करता हूँ। जब मेरी आत्मा मेरे भीतर से व्याकुल हो रही थी, तब तू मेरी दशा को जानता था। Wow. जिस रास्ते में से जाने वाला था, उसी में उन्होंने मेरे लिए फंदा लगाया। मैंने दाहिनी ओर देखा परंतु कोई मुझे नहीं देखता। मेरे लिए शरण कहीं नहीं रही, ना मुझको कोई पूछता है। हे यहोवा, मैंने तेरी दुहाई दी है। मैंने कहा तू मेरा शरण स्थान है। मेरे जीते जी तू मेरा भाग है। मेरी चिल्लाहट को ध्यान देकर सुन, क्योंकि मेरी बड़ी दुर्दशा हो गई है। जो मेरे पीछे पड़े हैं उनसे मुझे बचा ले, क्योंकि वे मुझसे अधिक सामर्थी हैं। मुझको बंदीगृह से निकाल कि मैं तेरे नाम का धन्यवाद करूं। धर्मी लोग मेरे चारों ओर आएंगे, क्योंकि तू मेरा उपकार करेगा। Hallelujah. Hallelujah. So when David was in cave, he wrote this prayer. तो ये प्रार्थना का भजन दाऊद ने लिखा उस गुफा में। He was in distress, really troubled. दिक्कत में था, परेशानी में था।
You know, he was hiding from the trap of the enemy. शत्रु के जो ट्रैप है, जो पकड़ है, उससे बचने के लिए वो छुपा And हुआ he is था। writing in verse number 4, it said, look to the right and see, there is none who takes notice of me. और वो कहता है कि मैंने दाहिनी ओर देखा परंतु कोई मुझे नहीं दिखा, कोई मुझे नहीं देखता। No refuge remains to me. मेरे लिए शरण की कोई जगह नहीं No रही one cares for my soul. और मुझे कोई नहीं पूछता। He was isolated. अब वो एकदम अकेला पड़ गया। He thought that isolation was the insulation from the king Saul. उसको लगा कि अकेले रहने में उसका बचाव हो जाएगा शाऊल राजा से। But he was all alone in that cave. लेकिन उस गुफा में वो एकदम अकेला हो गया। Oh, am I talking to some people who had gone through this season of all alone? क्या पूरा अकेला रहने के इस मौसम से कोई जो निकला है, क्या मैं उनसे बात कर रहा हूँ? Oh, you are alone so much so that you are unable to, share things with your family, with your spouse, with your children. इतना ज्यादा अकेलापन में चढ़े गए हो कि आप अपने पति या पत्नी से नहीं बांट सकते, बच्चों से या माँ बाप से नहीं बांट David was in सकते। the same condition. वैसी ही अवस्था में दाऊद भी पड़ गया। There was no one. कोई नहीं है उसके आसपास। And the scholar says that this cave of Adullam was supposed to place as a tomb. और जो बाइबल के स्कॉलर हैं वो कहते हैं कि ये जो गुफा है अदुल्लाम की, ये एक कब्र के मानंद भी रखी गई थी। This cave is still there in Israel, and now, even today you can see, bones out there. और आज भी ये कब्र इजराइल में है और उसके आसपास हड्डियों को भी देखा गया है। So it was a place where, dead body was kept. और ये वैसी जगह है जहां पर जो शव हैं उनको रखा जाता है। But लाशों I को। tell you that place, which was a tomb for everyone, became a womb for David to regenerate, to reintroduce to a new level. और ये जगह जहां पर शवों को रखा जाता था, लाशों को रखा जाता था, ये वो जगह बन गई जहां पर दाऊद ने गर्भ धारण When कर he लिया। was all alone in that cave, जब वो अकेला था उस कब्र में, he had a personal time with the Lord. उस गुफा में परमेश्वर के साथ वो रूबरू हुआ, भेंट Maybe की। he was crying day and night, हो सकता है कि सुबह शाम वो केवल रोता हो, seeking help from God Almighty. परमेश्वर को पुकारता रहता हो। But I tell you that cave became that place of intimacy. और वो जो जगह है गुफा की, वो घनिष्ठता की जगह बन गई परमेश्वर के साथ उसके लिए। It is not just the location that matters, ना केवल वो स्थान की जो लोकेशन है वही जरूरी नहीं but थी, sometimes who is entering to that location matters a lot. उस विशेष स्थान में कौन अंदर आ रहा है, कौन भीतर आ रहा है, वो महत्वपूर्ण हो जाता है। Even in that tomb, उस गुफा में भी, कब्र में भी, when David entered, जब दाऊद घुसा, oh, that place became the inner chamber. वो एक अंदरूनी कक्ष बन गया उसके लिए परमेश्वर के साथ एक होने में। Hallelujah. हालेलुया। Don't complain to me that because of this house, because of this office, because of this place, I'm not blessed. You are blessed. You are highly favored. If you know how to take root where you are located, you shall flourish in Jesus' name. अगर आपको अपने स्थान में जड़ पकड़ना आता है तो आप बहाने नहीं बनाओगे, आप परमेश्वर में बढ़ोगे। Hallelujah. हालेलुया। So this time, तो अब ऐसा होता है, David was at his lowest point. तो दाऊद जो है अपने सबसे कमजोर कड़ी पर पहुंच जाता है। My beloved, what will you do when you find yourself, isolated in distress? मेरे प्रियो, आप क्या करोगे जब अपने आप को अकेला पाओगे ऐसी घड़ी में? When he was all alone, जब वो पूरा अकेला होता है instead of complaining and crying और बहानेबाजी के बजाय and crying, और रोने विलाप करने के बजाय, oh, he sought the Lord. उसने परमेश्वर को खोजना शुरू किया। I tell you, heaven is open for you 24/7. मैं आपको कहता हूं कि आसमान खुला है आपके लिए 24 घंटे। Oh, you and I must know how to knock the corridors of heaven. हमें पता होना चाहिए कैसे स्वर्ग का द्वार खटखटाना है। If you know how to knock the corridors of heaven, I tell you, you will not taste defeat in your life. अगर आपको पता चल जाए कि आसमान का कैसे खटखटाना है द्वार, तो आप कभी
कभी हारेंगे नहीं जीवन में। When your family is against you, knock the corridor of heaven. जब आपका परिवार आपके विरोध में हो जाए तो स्वर्ग का दरवाजा खटखटाइए। When there is pain in your body, knock the corridor of heaven. जब शरीर में दर्द हो तो स्वर्ग का दरवाजा खटखटाओ। When you are broken from inside, knock the corridor of heaven. अंदर से जब टूटे हो तो स्वर्ग का दरवाजा खटखटाइए। Bible says, knock and it shall be opened to you. बाइबल कहती है कि खटखटाओ और तुम्हारे लिए खोला जाएगा। Hallelujah. हालेलुया। I tell you, Mama, everyone sitting here, knock the corridor of heaven until it opens. जो माएं हैं और जितने भी लोग यहाँ बैठे हैं, जान लो कैसे खटखटाना है स्वर्ग का दरवाजा। You must know how to unlock certain things. कुछ चीजों को कैसे खोलना है, कुछ फाटकों को कैसे खोलना है, इसको समझना It जरूरी is है। one thing to just wait, okay, आएगा, खुलेगा, समय अपने। बाट जोना अलग बात है, But sometimes you need to know the principles to open the doors of heaven. स्वर्ग के दरवाजे खोलने के लिए कुछ कुंजियां आपको चाहिए, कुछ सिद्धांत आपको पता होने चाहिए। Hallelujah. हालेलुया। So David was in the cave, तो अब गुफा में अकेला है दाऊद, yet फिर भी something happened in that cave. उस गुफा में कुछ होता है। So when you are having fellowship with the dry bones, तो जब आप सूखी हड्डियों के साथ संगति कर रहे हो, will you act like dead bodies? तो क्या आप भी उस मरी हुई हड्डियों के समान मरा हुआ अपने आप का बर्ताव करेंगे? David, you had a good reason to be quiet. दाऊद, तुम्हारे पास पूरे कारण है कि तुम शांत रहो, कुछ मत करो। David, you had a good reason to be backslided. डर के कारण तुम अब गिर भी सकते हो, कोई तुम्हें कुछ नहीं बोलेगा। You had a good reason to withdraw from God's presence. परमेश्वर की हुजूरी से तुम दूर भी चले जाओगे, तब भी तुमको कोई वो नहीं होगी But I परेशानी। tell you, लेकिन मैं आपको बता दूं, he knew that his help comes from the Lord. उसको पता था कि उसकी सहायता परमेश्वर से आनी है। It doesn't matter who is with you. उससे फर्क नहीं पड़ता कि कौन है आपके It पास। doesn't matter who left you. इससे फर्क नहीं पड़ता कि किसने आपको छोड़ If दिया। God is with you, अगर परमेश्वर आपके पास if है, God is for you, अगर परमेश्वर आपका है, who can be against you? कौन आपके विरोध खड़ा हो सकता है? Hallelujah. हालेलुया। This cave, ये जो गुफा है, in Greek known as a place of refuge, और यूनानी शब्द में पनाह पाने का स्थान, became a place of justice. वो एक न्याय की भूमि बन गई। It became the spiritual gate for David to be introduced as a new person. और दाऊद का एक नया शख्सियत उसको मिल जाए, वैसी एक जगह बन गई उसके लिए। Hallelujah. हालेलुया। Whenever you are distressed, whenever you taste failure in your life, we tend to run into that cave that we have created. जब भी हम असफल होते हैं जिंदगी में, उस गुफा में जो हमने बनाई है उसमें बार-बार चले जाते हैं। That cave may be that 10x6 room that you have. हो सकता है कि वो 10x6 का कमरा हो, वो जो गुफा आपने बनाई हो। That cave may be the place where you isolate yourself. वो जगह वो होती है जहां पर आप अपने आप को दरकिनार कर लेते हो। But here I am to tell you that that very place that you consider as cave can be a place to regenerate. और मैं आपको कह सकता हूं कि जो जगह आपने अपने आप को एक गुफा के मानिंद बनाई है, वो जगह आपके लिए एक बड़े अनुग्रह का स्थान भी बन सकता है। So when nothing was left, जब उसके लिए सब चीजें समाप्त हो रही थीं, Bible says बाइबल कहती David left Gath, which means Gath means a new wine, a place of new wine. Okay, so when he left Gath and he escaped to the cave of Adullam, तो बाइबल कहती है कि वो गाद जगह से निकलकर वो एदुलम में आता है। now what happens? अब क्या होता है वहां पर? When his brothers and his father's household heard about it, जब उसके पिता के घराने ने सुना उसके बारे में, he was hiding, he was all alone with the Lord. अकेला था, छुपा हुआ था, परमेश्वर के निकट पाया गया उस गुफा में। His father's household and brothers heard about him, उसके भाइयों ने सुना, उसके पिता के घराने ने सुना, and they came to that cave of Adullam
meet David. और वे आए अदुल्लम की गुफा में उससे मिलने को। And very interesting thing is, रोचक बात यह है, those who came to meet him जो आए थे मिलने उससे, was all distressed person. वो खुद ही पहले से कमजोर लोग थे। They were in debt, वे परेशान थे discontented, और उदास थे। and this kind of people gathered around him. ऋणी, उदास, कमजोर, हारे हुए लोग, ये लोग आए थे दाऊद के पास। प्रभु काउंसिलर भेजे हो तो कैसे को भेजे हो, मदद भेजे हो तो कैसे को भेजे हो? Because he's fighting the king of the nation, the powerful man of that land. क्योंकि वो उस देश के राजा से लड़ाई कर रहा है, उसको वहां से निकालने के लिए कोई और सामर्थ्य चाहिए। Hallelujah. हालेलुया। This distressed, discontented people came to David to help him. ये संकट में पड़े ऋणी लोग और उदास लोग आए दाऊद की सहायता करने। And what happened? फिर क्या होता है? And he became the commander of that group. और वो उनका प्रधान हो गया। And 400 men were with him. और कोई 400 पुरुष उसके साथ हो गए। My goodness. Come on. That cave became the place of transformation, a training place for David and 400 men. वो जगह जो गुफा की थी वो परिवर्तन की जगह बन गई दाऊद के लिए, और जो 400 पुरुष उसके साथ थे उनके लिए। I posted this on my channel, WhatsApp channel, and on Facebook. व्हाट्सएप चैनल और फेसबुक पे मैंने पोस्ट किया था अपने, that the men who were with David became strong. जो दाऊद के साथ पुरुष थे वे शक्तिशाली हुए। Weak men with David became strong. जो असहाय थे, कमजोर थे, वो दाऊद से जुड़कर सशक्त हो गए। But strong men with King Saul became weak. लेकिन जो शक्तिशाली लोग थे शाऊल राजा के साथ, वे कमजोर पड़ गए। So to whom you are associated matters. तो आपका संगठन किसके साथ है वो जरूरी है। With whom you are standing matters. आप किसके साथ खड़े हो वो जरूरी है जानना। Even if people are distressed, अगर लोग कमजोर भी हों और संकट में भी क्यों ना हो, if they know how to associate with right person, अगर सही व्यक्ति के साथ जुड़ना उन्हें आता है, they will be strong. तो वे सशक्त किए जाएंगे। Hallelujah. हालेलुया। So 400 men came to David. दाऊद के पास 400 पुरुष आए। When David was in distress, जब दाऊद वहां पर कमजोरी में था, still he took courage to train others. संकट में भी उसने साहस दिखाया कि लोगों को तैयार कर सके। David, he was ready to train 400 people in that location. उस गुफा के स्थान में 400 लोगों को तैयार करने के लिए दाऊद ने अपने आप को ठाना। Just before some days, he was crying in the cave. कुछ ही दिन पहले तो वो जोर जोर से बिलख कर रो रहा था। But God, he sent help to David. तो परमेश्वर ने दाऊद को मदद भेजी। When this distressed men, discontented men came to David, he didn't see the current situation, but he saw great warriors in them. जब ये संकट में और उदासीन लोग आए दाऊद के पास, तो दाऊद ने उनका संकट और उदासीन होने को नहीं देखा। Whatever you experience in life will not go in vain. जो भी आप जीवन में अनुभव लेते हो वो जाया नहीं जाएगा। It's the part of process. वो तो प्रक्रिया का हिस्सा है। Pain is the part of process. दर्द जो है प्रक्रिया का हिस्सा है। That brokenness is the part of वो process. टूटा होना प्रक्रिया का हिस्सा है। Hallelujah. Hallelujah. That wound is the part of process. वो चोटिल होना उस प्रक्रिया का भाग है। But I tell you, nothing of this will be the part of your destiny in Jesus' name. लेकिन मैं आपको बता दूं कि ये सारी चीजें जो हैं ये आपकी मंजिल के हिस्सा नहीं होंगी। Yes, यीशु के I नाम में। went through pain, but pain will not remain in me when I reach my destiny. Yes, I went through brokenness, but this brokenness will not remain in my heart, in my destiny. I went through wounds, but no scars will be found when I reach my destiny in Jesus' name. दर्द, पीड़ा और टूटापन मेरे प्रक्रिया का हिस्सा थे, लेकिन जब मैं मंजिल को पहुंचूंगा मेरे अंदर से सब चली जाएंगी। Hallelujah. हालेलुया। David had nothing. दाऊद के पास कुछ नहीं था। When he went to the high priest Ahimelech, अहीमेलेक के पास जब वो जाता है,
He asked जो for महायाजक था, sword or any spear. और उसने फिर वहां पर तलवार पूछी कि कोई शस्त्र है. And you know what he said? पता है क्या उसने बोला? 1 Samuel chapter number 21 verse number 8 through 10. पहला शमूएल 21 अध्याय 8 से 10 आयत. फिर दाऊद ने अहीमेलेक से पूछा, क्या यहाँ तेरे पास कोई भाला या तलवार नहीं है? क्योंकि मुझे राजा के काम की ऐसी जल्दी थी कि मैंने तो ना अपनी तलवार साथ लाया हूँ और ना अपना कोई हथियार लाया हूँ. याजक ने कहा, हाँ, पलिश्ती गोलियत जिसे तूने एला तराई में घात किया, उसकी तलवार कपड़े में लिपटी हुई एपोद के पीछे रखी है. यदि तू उसे लेना चाहे तो ले ले, उसे छोड़ और कोई यहाँ नहीं है. दाऊद ने बोला, उसके तुल्य कोई नहीं, वही मुझे दे. तब दाऊद चला और उसी दिन शाऊल के डर के मारे भागकर गत के राजा अकीश के पास गया. So he was weaponless. तो बिना हथियार के था वो. Nothing was there in his hand. उसके हाथ में कोई शस्त्र नहीं, कोई हथियार नहीं. So he went to Ahimelech to ask for weapon. तो शस्त्रों को ढूंढने के लिए, हथियार पाने के लिए अहीमेलेक महायाजक के पास गया. Do you think that temple of God is the, store of weapons? क्या आपको लगता है कि परमेश्वर का भवन में आपको तलवार और भाला मिलेगा? But when he asked for the weapon, there was only one weapon left. जब उसने हथियार को मांगा, एक ही हथियार शेष बचा था. And that weapon was the sword of Goliath. और वो जो हथियार था वो थी गोलियत दानव की तलवार. It was as a sign of victory. और वो एक विजय का चिन्ह के रूप में रखी गई थी. Wrapped in the cloth. और कपड़े से लिपटी हुई थी वो बड़ी भारी तलवार. Now this weapon, अब ये शस्त्र जो होता है, became something to remind David about his past victory. दाऊद को उसके अतीत की सफलताओं को याद दिलाने के लिए ये हथियार एक बन गया चिन्ह. When nothing is left in your life, जब जिंदगी में सब खत्म हो रहा हो, please recollect or remember those victories in the past. पुराने अपने अतीत की सफलताओं को स्मरण रखिए. Don't go for, I need something new. Okay, God will give you new revelation, new light. But sometimes just look back. You will find that courage to face the current situation. कमजोरी में कभी-कभी आपको अपनी अतीत की सफलताओं को देखकर हियाव मिल सकता है, आपको प्रेरणा मिल सकती है प्रभु में आगे बढ़ने के लिए. So that only weapon that was in the house of God, so he took that sword of Goliath and he went to that cave. प्रभु के भवन में जो एकमात्र हथियार बचा था, उसने वो लिया और जाकर उस गुफा में चला गया. So when you are in the cave of Adullam, you must take that sword of victory. तो जब आप अदुल्लाम की गुफा में हो तो आपके पास वो विजयी तलवार होना अवश्य है. Why the sword of Goliath was very, important to David? दाऊद के लिए क्यों इतनी महत्वपूर्ण थी वो तलवार जिससे गोलियत? Because it is the same sword by which he chopped the head of Goliath. क्योंकि वो वही तलवार थी जिससे गोलियत का सर धड़ से अलग किया गया था. Are you with me, church? क्या आप मेरे साथ हैं कलीसिया? So now to fight against the king, तो राजा के साथ अब युद्ध लड़ने के लिए David had to carry that sword with him. दाऊद को अपने साथ वो गोलियत की तलवार लेकर चलना अवश्य था. Because that was the place of what? Transformation. क्योंकि वो जगह जो थी वो परिवर्तन की जगह बन गई थी. Amen. Yes, amen. A place where people used to cry remembering their beloved ones. एक वो जगह जहां पर लोग विलाप करते थे, अपने पुराने लोगों को याद करते. That place became the training place. वो जगह एक तैयारी का स्थान बन गया. Wow. People used to cry. The sound changed in that place. वो विलाप की गूंज जो है उस जगह पर बदल गई. Now that people could hear the sound of armies marching. और वहां पर अब सेना की तैयारी की आवाजें उस जगह से निकलने लगी. So now
the sound of that place changed. अब वहां की जो ध्वनि थी, धुन थी, वो बदल गई। Do not be affected by the companies of afflicted people. जो संकट और उदास लोग हैं, उनकी संगति से भयभीत मत होना। When somebody comes with complaints or crying before you, अगर कोई रोते हुए, विलाप करते हुए आप तक पहुंचे तो परेशान मत हो। you be the encourager. आप उसकी हौसला अफजाई कीजिए। You be the Barnabas, which means the son of encouragement. आप बनिए बरनबा और वो आत्मविश्वास बढ़ाने का संतान बनिए। Hallelujah. Hallelujah. Don't be the discourager. छोड़, निराश करने वाले लोगों को मत बनो। उन्हें करने दो, उन्हें ही करने दो, उन्हें ही आगे बढ़ने दो। Hello, that means you are allowing somebody to go ahead of you. आप अनुमति दे रहे हो ऐसा करने में कि दूसरा आपसे आगे निकल जाए। But be the encourager. लेकिन आप लोगों की हौसला अफजाई करें। We will learn 4 movements of this cave of Adullam. तो अदुल्लम की गुफा के जो 4 मूवमेंट है, 4 कार्य जो वहां हुए, उसके बारे में देखेंगे। The first was entering into the cave, पहला कि उस गुफा में प्रवेश करना। a tomb. एक जो गुफा जो कब्र के मानिंद भी थी। Amen. Amen. So David departed from his family, from the palace, from the armies, and from the king, and he's isolated here. सब लोगों को छोड़कर दाऊद निकल के इस गुफा में पहुंचता है अकेला। And the second movement is और जो दूसरा चलन होता है, alone inside the cave. वो अकेलेपन में उस गुफा के भीतर। Now, when he was alone inside the cave, that place became the womb to regenerate and give birth to a new person. अकेला उस गुफा के अंदर वो उसके गर्भ धारण करने की जगह बन जाती है। Amen. आमीन। David now stopped seeking help from men, and now he was realigned with God, and now he sought the Lord. अब उसने मनुष्य से सहायता मांगनी बंद की और परमेश्वर से जुड़ गया। Amen. Amen. So when he was faithful with God in inner chamber, जब वो अंदरूनी कक्ष में परमेश्वर के साथ विश्वासियों के पाया गया, as soon as he came out, he found his people, his families surrounding him. और जब वो बाहर निकलता है उस गुफा में से, तो उसको अपने लोग मिल जाते हैं, एक सेना मिल जाती है। Be faithful in the cave. आप अंदर उस गुफा के भीतर विश्वासियों के रहिए। You will see God's favor outside the cave. उस गुफा के बाहर निकलते ही आपको परमेश्वर का अनुग्रह दिखेगा। Amen. आमीन। So now the last moment was leaving that cave. अब चौथा चलन था कि उस गुफा में से बाहर निकलना। David was revived. दाऊद जो था वो बेदार हुआ, He was aligned with God. परमेश्वर के साथ जुड़ गया। Now he formed army. अब उसने सेना खड़ी कर दी। Now the last moment was he is now going out of cave to what? Fight back King Saul. अब वो उस गुफा के स्थान से बाहर निकलता है कि शाऊल राजा से लड़ सके। Are you with me, church? क्या आप मेरे साथ हो कलीसिया? When he came out of cave, जब वो गुफा से बाहर निकला, he came out as a commander. वो एक सेनापति के रूप में बाहर निकला। Hallelujah. हालेलुया। He went into the cave as loser, वो एक हारा हुआ व्यक्ति अंदर प्रवेश किया उसने but he गुफा came में, out as a commander. लेकिन जब वो बाहर निकला तो सेनापति के रूप में निकला। Till now, David used to work for King Saul. अभी तक वो शाऊल राजा के अंतर्गत काम करता था दाऊद। After this cave of Adullam season, now he was the man as a commander to lead army, and then God trusted him to lead the nation. और उसके बाद उस गुफा से बाहर निकलने की पूरी प्रक्रिया के बाद न केवल वो अब सेनापति बना, लेकिन आगे चल के उस देश का राजा बना। Listen to me. ध्यान से Listen सुनिए, to me. ध्यान से सुनिए। If you are faithful to do the plans of God, to do the will of God in the cave, अगर आप गुफा के भीतर परमेश्वर की इच्छाओं का पालन करते हो, God will trust you in the castle. तो परमेश्वर राजमहल में आप पर भरोसा जताएगा। Hallelujah. हालेलुया। यस। So now this cave regenerated David, and when he stepped out of cave,
he came out as a commander, as a new king. He became the king over Israel. और इसके बाद वो पूरे इस्राएल साम्राज्य पर राजा बना दिया After गया। that, he started building the empire for Solomon. और उसके बाद वो अपने राज्य को सशक्त करने लगा आने वाले राजा सुलेमान के लिए। He started establishing the house of God, the city of God, and the constitution. परमेश्वर का भवन, परमेश्वर का राजमहल और परमेश्वर का जो संविधान है उसको बनाने की प्रक्रिया उसने शुरू कर दी। He was the one to bring back Ark of Covenant back to Israel. और दाऊद राजा ही था जो वाचा का संदूक परमेश्वर के वो वापस लेके आया वो यरूशलेम में। But how he could do that? ऐसा सब कुछ कैसे कर पाया दाऊद? It's because he was faithful in the cave of Adullam. वो इसलिए क्योंकि वो अदुल्लाम के जो गुफा थी वहां पर विश्वास योग्य ठहरा। Hallelujah. हालेलुया। You will not come out in the same manner you went in the cave. जिस प्रकार से आप उस गुफा में गए वैसे ही बाहर नहीं आओगे। You are coming out as a victorious person. आप बाहर आ रहे हो विजयी होकर। Amen. आमीन। Hereafter, अब से David didn't taste any defeat in his life. अपनी जिंदगी में दाऊद ने कोई हार को नहीं चखा। Hereafter, he had a glorious, finish, destiny. अब से हमेशा तक दाऊद की जीत ही हुई, महिमित रहा उसका But child भविष्य। of God, are you ready to stay faithful, to remain rooted in the cave of Adullam? लेकिन प्रभु के बच्चों, क्या आप तैयार हो अदुल्लाम की गुफा में विश्वासियों के बने रहने के लिए?